हाय बच्चों, हाउ आर यू? ऑल गुड? सारे बच्चे सब मस्त हो? ठीक है बच्चों, दिस इज माय फर्स्ट क्लास ऑन एरिया अंडर द कर्व एंड दिस इज जस्ट आफ्टर वी फिनिश्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन. एंड बच्चों, डिड यू अटेंड माय क्लास on shortcut tricks, the last class of definite integration? Did you attend this class? Yes or no? I want to say yes or no. Shortcut tricks. जल्दी बताओ, yes or no? Did you attend this class? This was super important class. If you could not attend it, please go and revise this class. In this class we took more than 10 plus questions of JEE Advanced and JEE Mains, and you learnt at least 4 to 5 shortcut tricks in the class. Yes? Chalo, awesome. Good to see that. Now bachcho, let's move ahead. Today we are going to do area under the curve. Area under the curve is very important. Again, I'll show you the marks distribution. Why is this important? But it is important, and it is just building up on the concepts of definite integration. जो भी हमने definite integration में पढ़ा बच्चों, उसी के ऊपर इसको build करेंगे. तो ये बहुत simple है. अगर वो समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा, राइट? स्वागता इज आस्किंग वेयर इज माई टी शर्ट. अरे यार, मैं टी शर्ट भूल गया आज. ओके, सो बच्चों, दिस इज अबाउट मी. आई एम पुलकित. आई डिड माई बीटेक फ्रॉम IIT रुड़की वे बैक इन 2005. देन आई स्टार्टेड 2 companies. First one is Laksh, which has produced many top rankers including rank 1 in IIT, AIMS, KVPY. And then we started Vedantu, where we using building lot of technology to teach all those amazing students out there just like you. And मैं YouTube पे क्लासेस क्यों ले रहा हूँ? हम सब YouTube पे क्लासेस क्यों ले रहे हैं? ताकि आप सब बच्चे जो कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में रहते हो, आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो भी हो, आप सब पढ़ पाओ. ऑल ऑफ यू कैन स्टडी. इफ़ यू बिलीव इन दैट बच्चों, डू हेल्प अस शेयर दिस मिशन, दिस विजन टू अदर स्टूडेंट्स बाय शेयरिंग द लिंक्स ऑफ दीज क्लासेस विथ योर फ्रेंड्स. व्हाट्सएप पे शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो, जहाँ शेयर कर सकते हो करो. And do like if you understand, and do subscribe if you are a new student. Subscribe so that you keep getting notifications of all the new classes of Vedantu. कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है? हाँ, ये बोल रहा था बच्चों में, देख लो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. लुक हियर, अगर आप ध्यान से देखो, लुक एट दिस पोर्शन. राइट? सो दिस इज एरिया अंडर द कर्व. You realize that every year indefinite से एक क्वेश्चन, definite से एक क्वेश्चन, and area under the curve से एक क्वेश्चन. If you combine these two are similar thoughts, definite and area under the curve. अगर आप इन दोनों को मिला लो तो almost 2 problems, but 2 very simple problems which you will be able to solve. So ये free के numbers हैं. These chapters are very important. Will constitute almost 10% ऑफ द एंटायर JEE करिकुलम. तो JEE का जो पेपर आएगा उसमें 10% मार्क्स आप गेन कर सकते हो इफ दीज टॉपिक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं. ऑन दिस नोट, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है बच्चों, ज्वाइन कर लेना. लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा. PDFs विल बी शेयर्ड ऑन द टेलीग्राम ग्रुप एज वेल एज ऑन वेदांतु ऐप. सारी असाइनमेंट्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं. टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव अहेड. हाँ, so we'll start with the geometrical interpretation of definite integration. What is geometrical interpretation बच्चों? This is the geometrical interpretation that area under the graph. कैसे हमने इसको समझा था और डिटेल में समझाऊंगा अभी with some animation also. We understood that if we are integrating fx between a to b, if we are integrating f of x between a to b, right, it is as good as saying कि आपने एक dx एलिमेंट लिया. दिस इज व्हाट आई कॉल एज अ dx एलिमेंट, ठीक है? एंड से दिस पॉइंट इज a एंड से दिस पॉइंट इज b, राइट? देन दिस dx एलिमेंट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कवरिंग दिस एंटायर एरिया between a to b. Integral a to b fx dx, if the graph is above x-axis, is area under the graph. But let us try to understand that in a bit more simpler way. देखना बच्चों ध्यान से, मैं आपको दिखाता हूँ. इस सब को छोड़ो, इस पे आ जाते हैं. ये देखो बच्चों, मान लो ये इंटीग्रेशन आया कहाँ से? क्विक 2 मिनट्स का रिवीजन करेंगे. क्विक 2 मिनट्स रिवीजन टू हेल्प यू विजुअलाइज व्हाई इंटीग्रेशन इज एरिया अंडर द ग्राफ, राइट? सो लेट अस इमेजिन
कि अपने पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता, इमेजिन दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, कैन यू सी वीटी ग्राफ, राइट? नाउ इमेजिन करो दैट यू नो द वेलोसिटीज ऑफ अ कार गोइंग, ठीक है, आफ्टर सम डेल्टा डेल्टा टी। आपको क्या पता है, मान लो 0 पे आपको वेलोसिटी पता थी, फिर आपको आफ्टर डेल्टा टी से T1 के ऊपर वेलोसिटी पता थी, सो दिस इज T1 से एंड दिस इज T2। T1 पे वेलोसिटी V1, T2 पे वेलोसिटी V2, T3 पे वेलोसिटी V3, T4 पे वेलोसिटी V4, V5 एंड V6, राइट? आपको डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे वेलोसिटी पता है। देन व्हाट इज द, इफ आई आस्क यू टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, देन व्हाट विल यू डू बच्चों? यू विल डू, क्या करोगे बच्चों? आप बोलोगे V1 डेल्टा टी, V1 यहां पे वेलोसिटी इनटू द टाइम गैप, राइट, विल गिव यू द अप्रॉक्सीमेट एरिया या अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट कार इन दैट डेल्टा टी ड्यूरेशन। क्यों? क्योंकि मुझे बीच की वेलोसिटीज पता ही नहीं है, आई डोंट नो द वेलोसिटीज इन बिटवीन दिस, ऑल आई नो इज T1 पे वेलोसिटी, ऑल आई नो इज T2 पे वेलोसिटी। एंड सिमिलरली आप क्या करोगे, V2 डेल्टा टी से लेके फाइनली आप करोगे V5 डेल्टा टी। दिस विल गिव यू अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस और अप्रॉक्सीमेट डिस्प्लेसमेंट डन बाय द व्हीकल। यस और नो? ये समझ में आता है आपको? वाई इज दिस अप्रॉक्सीमेट बच्चों? दिस इज गोइंग टू गिव यू, कैन आई ऑल्सो राइट दिस एज सिग्मा V डेल्टा टी, ऐसे भी लिख सकता हूं इसको मैं, राइट? दिस इज गोइंग टू गिव यू अप्रॉक्सीमेट, वाई? क्योंकि मुझे in between T1 and T2, in between T2 and T3, I do not know the actual velocities. So basically मैं graphically क्या कर रहा हूँ, this V1 delta T is this area of the rectangle, this V2 delta T is this area of the rectangle. Why? V1 delta T, V2 delta T, V3 delta T. So this shaded portion is not the actual area under the graph, but it is approximate area under the graph. क्यों? क्योंकि बीच का एरिया मिस हो गया ना। Do you realize this area got missed, this area got missed, this area got missed, this area got missed, this area got missed. अब आप सोच रहे हो अगर मैं डेल्टा टी को शॉर्ट कर दूं, if I decrease the delta t, if I keep decreasing the delta t, तो बच्चों क्या होगा? Very soon ये आपके रेक्टेंगल स्मॉलर होते जाएंगे and this missing area, these missing areas will start getting removed. Can you visualize that? देखो मैं दिखाता हूं क्या बोल रहा हूं. This is what I'm trying to say. देखो ध्यान से. Look at this. As the delta t's keep getting smaller, do you realize that this approximate area under the graph actually becomes the actual area? Look at this. देखो ध्यान से. Can you see this? Yes. So as we keep decreasing delta t, as delta t becomes dt, as delta t becomes dt, तो बच्चों क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? The entire area under the graph is getting covered. So बच्चों, what I'm doing today, I'm just trying to give you some insight into the theory behind and the understanding behind area under the graph. I know maximum students already know this, but still revising it is not a problem because I'm just devoting 5 minutes to it. Cool? तो बच्चों क्या हो गया? So what is happening here? देखना ध्यान से. एक सेकेंड. हाँ. So as delta t becomes dt, your sigma becomes integration. So delta is approximate, which was sigma v delta t. As your delta t becomes dt, as delta t becomes dt, as it becomes smaller, right, this sigma actually becomes the integration. So integration is nothing but sigma, actually integration is nothing but summation, right? So summation v dt, which actually is the sign v, that summation का sign बन जाता है integration. It gives you exact area under the graph or exact displacement. Got it? बच्चों यहाँ तक clear है ना? Anybody any doubt in this? Can I move ahead? I hope it's clear to all of you, right?
This visualization is also clear to all of you, right? So Preetham, exact, it becomes exact area as delta t becomes dt, sigma becomes integration v dt will give you exact area under the graph. Cool? आगे बढ़ते हैं. Now another concept which we had already discussed was that integration is equal to area under the graph if the graph is above x-axis, but if the graph is below x-axis, right? तो बच्चों क्या हो जाएगा? Integration is actually negative of area. तो imagine करो कि area under the graph between A to B was A1. यहाँ पे area कितना है? A1. This area is A1, right? This area is A2. This area is A3, right? This is B, this is C, this is D, E, right? So A1, A2, A3, A4 ये exact areas हैं, right? But अगर मैं आपको integration बताऊं, so if somebody asks you what is integral A to B fx dx, it will not be the area, it will actually be minus of that. If the graph is below x-axis, integration is always negative. If the graph is above x-axis, integration is always positive. I have told this before already, right? So अगर कोई आपसे पूछे area under the graph क्या है, बच्चों ये है. If somebody asks you what is area under the graph, आप क्या करोगे? आप function के ऊपर लगा दोगे modulus. You will put modulus onto the function, which will do what? It will take all the negative portions up. ये ग्राफ बच्चों किसका है? This upper graph. ये अपर ग्राफ क्या है? This graph is of mod of fx, right? So अगर मैं mod of fx का इंटीग्रेशन कर दूं, then what you will get is actually summation of the areas a1 plus a2 plus a3 plus a4. नेगेटिव साइंस हट जाएंगे. क्लियर? इज दैट क्लियर? अरे अथर्व, नेगेटिव एरिया कुछ नहीं होता बेटा. एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव. इंटीग्रेशन इज नेगेटिव. ये एरिया कितना है? फिर से बताता हूँ, कंफ्यूज मत हो, ये बहुत बच्चे कंफ्यूजन होता है. मान लो ये एरिया कितना है? ये एरिया होता इफ दिस एरिया इज फॉर एग्जांपल 5 स्क्वायर यूनिट्स, तो एरिया तो बच्चों पॉजिटिव है. एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज पॉजिटिव, बट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन a to b fx dx बच्चों क्या होगा? सिंस द ग्राफ इज बिलो एक्स एक्सिस इट विल बी -5. एरिया तो पॉजिटिव है, बट इंटीग्रेशन इज नेगेटिव इफ द ग्राफ इज बिलो एक्स एक्सिस. समझ में आया अथर्व? मेक सेंस? क्लियर? चलो अब आगे जाते हैं. तो अपन एक काम करते हैं, अपन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद दिस क्वेश्चन. फाइंड द एरिया enclosed by x-axis and this curve. Now let's listen to this language very carefully and we'll start building about the problems. So area enclosed by what? X-axis and the curve. अपने को चाहिए area enclosed by x-axis and this. Can you tell me how this graph will be? Can you tell me? Yes, Preetham says wavy curve use कर लेंगे concept. Yes. Can you tell me how its graph will be? Cubic graph है, कैसा होगा? ध्यान से सुनना, कैसा होगा ग्राफ? ये है, राइट? ये ग्राफ कहां कहां पे जीरो होगा बच्चों? वेयर विल दिस ग्राफ बी जीरो? वेयर विल इट क्रॉस एक्स एक्सिस? कहां कहां पे क्रॉस करेगा एक्स एक्सिस को बच्चों? वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. देखो जरा ध्यान से. जीरो पे, when x is 0, y is 0, when x is -1, when x is -1, then x is 0, when x is 2, then also the graph is 0, it will cross x axis. ये तीन रूट्स हैं इसके. वेवी कर्व क्या बोलता है? द साइन ऑफ द ग्राफ पढ़ाया था मैंने आपको. बियॉन्ड 2 it will be positive, then it will be negative, then it will be positive, and then it will be negative. This is how the graph will be. This is how the graph will be. This is a cubic graph with 3 roots, right? 2, 0, -1, right? अपने को चाहिए area bounded. अपने को चाहिए area bounded between x-axis and the graph. We want this area. This is the area bounded by the graph. Got it? अब क्या करें इसको? How to solve? How to solve?
नाउ लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट दिस इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करें. इंटीग्रल, मुझे चाहिए इंटीग्रल -1 से 2, -1 से 2. ऑलवेज रिमेंबर एरिया एनक्लोज्ड बाय द ग्राफ इज ऑलवेज मॉड्यूलस ऑफ fx dx. मैं केवल पॉजिटिव एरियाज की, मैं केवल पॉजिटिव पोर्शंस की बात कर रहा हूं. इन द सेंस आई वांट दिस एज अ पॉजिटिव वैल्यू एरिया, आई वांट दिस एज अ पॉजिटिव वैल्यू एरिया. मुझे एरिया चाहिए, इंटीग्रेशन नहीं. व्हाट डू आई वांट? आई वांट एरिया, नॉट द इंटीग्रेशन. क्लियर? इज दैट क्लियर? अब क्या करें, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अब क्या करो, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करो. नाउ यू हैव टू ब्रेक इनटू टू पार्ट्स. मॉड्यूलस बिटवीन -1 to 0, द ग्राफ इज पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. सो बिटवीन -1 to 0 द ग्राफ इज ऑलरेडी पॉजिटिव. दिस इज ऑलरेडी पॉजिटिव, सो आई कैन डायरेक्टली इंटीग्रेट टू फाइंड द एरिया. तो बच्चों क्या हो जाएगा? x minus 2 x plus 1 dx. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. बट जैसे ही मुझे जाना है 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में जाना है मुझे, द ग्राफ इज नेगेटिव, द ग्राफ इज नेगेटिव. इंटीग्रेशन विल गिव यू अ नेगेटिव वैल्यू, बट हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एरिया. तो मुझे बच्चों को क्या चाहिए? मुझे इंटीग्रेशन नहीं चाहिए, मुझे नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन चाहिए. इन सिंपल वर्ड्स, मुझे मॉड ऑफ एक्स चाहिए ना, क्योंकि ग्राफ यहाँ पे नेगेटिव है. दिस मॉड will open with a minus sign, so actually here integration but with a minus sign. बच्चों क्या हो जाएगा? x minus 2 x plus 1 dx, but between what? 0 से लेके 2. Solve it to get the answer. Anybody, any doubt here? अथर्व, क्वेश्चन अबाउट एरिया इंक्लूसिव वाई एक्सिस, ये क्लास के एंड में एग्जैक्टली वही चीज करेंगे अपन अथर्व. आई विल कम टू दैट, डोंट वरी, आई विल कम टू दैट टुवर्ड्स एंड ऑफ द क्लास. ठीक? एनी डाउट? हाँ, उज्जवल बकावत, डू यू अंडरस्टैंड? मॉड्यूलस लिखने का मतलब ही ये है कि बिटवीन 0 से 2 पुटिंग अ माइनस साइन. आई होप यू गॉट इट. ठीक है? इज दैट क्लियर? चलो, नाउ लेट्स मूव अहेड. अब इसकी कैलकुलेशन है वो आप कर ही लोगे. यू कैन डू द कैलकुलेशन, आई विल जस्ट शो यू. सो दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ. हमने क्या किया? हमने इंटीग्रेट किया इसको. कैसे? -1 से 0, -1 से 0, नो प्रॉब्लम. डायरेक्ट इंटीग्रेशन बिकॉज द ग्राफ इज अबव एक्स एक्सिस. बिटवीन 0 से 2 हमने फंक्शन के ऊपर मॉड लगा दिया बिकॉज द ग्राफ वॉज नेगेटिव, और इन अदर वर्ड्स हमने मॉड को हटा के बाहर एक माइनस साइन लगा दिया. एग्री? एनी डाउट? इज दैट क्लियर? नहीं चंचल, यू हैव टू विजुअलाइज द ग्राफ, यू हैव टू विजुअलाइज द ग्राफ टू अंडरस्टैंड वेयर इज द फंक्शन नेगेटिव, वेयर इज द फंक्शन पॉजिटिव. अब सूरज बोल रहा है व्हाई डोंट यू पुट सब्स्टिट्यूट मॉड एक्स इज इक्वल टू -x इन द सेकंड केस. बेटा मॉड एक्स नहीं लगा रहा हूं मैं, मॉड ऑफ एफ एक्स, नॉट मॉड एक्स, मॉड ऑफ एफ एक्स. किसका मॉड लिया है सूरज? एफ एक्स का. पूरे फंक्शन के बाहर आप माइनस साइन लगाओगे आफ्टर रिमूविंग द मॉड, क्योंकि फंक्शन क्या है? 0 से 2 के बीच में नेगेटिव है. क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. कैलकुलेशन बच्चों कर लेना. दिस इज द कैलकुलेशन. आपका आंसर आएगा 3n 1/12 स्क्वायर यूनिट्स. करके देख लो. ठीक? ओके उज्जवल, गुड, ग्रेट जॉब. ठीक, आगे बढ़ जाए. चलो लेट्स मूव अहेड एंड सी मोर प्रॉब्लम्स. हाँ, अब बच्चों एक विजुअलाइजेशन दिमाग में रखना. विजुअलाइजेशन, इसको दिमाग में रखो. ये इमेज जब भी आप इंटीग्रेट करते हो ना, whenever you integrate this, whenever you integrate fx dx between a to b, आप अपने दिमाग में सोचो आपने क्या किया. आपने एक एलिमेंट लिया, you took an element, you took a vertical element. इस वर्टिकल एलिमेंट का एरिया बच्चों कितना है? इसकी लेंथ कितनी है fx और इसकी विड्थ कितनी है dx. तो ये जो छोटा सा एरिया है ना, ये शेडेड रीजन का एरिया, दिस एरिया इज एक्चुअली योर fx dx. ये छोटा सा एरिया इज fx dx. आप इसको अपने दिमाग में सोच सकते हो, दिस इज इज छोटा सा एरिया एलिमेंट, राइट? व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग बिटवीन a to b, आप क्या कर रहे हो? इस एलिमेंट को मूव कर रहे हो फ्रॉम a to b.
sweeping the entire area. You are taking a vertical area element and moving it from left to right, A to B, sweeping the entire area under the graph A to B. Area bounded between the graph fx, x-axis, x equal to A, x equal to B is इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, दिस वर्टिकल एलिमेंट मूविंग फ्रॉम ए टू बी. बस दिमाग में सोचो वर्टिकल एलिमेंट मूव कर रहे हैं ऐसे ऐसे पूरा एरिया कवर करने के लिए, क्योंकि आगे जाके आई विल शो यू सम प्रॉब्लम्स वेयर यू विल बी टेकिंग दिस एरिया, हॉरिजॉन्टल एरिया अभी करेंगे आफ्टर सम टाइम. ओके, बट राइट नाउ वर्टिकल एरिया एफ एक्स डी एक्स ऐसे मूव कर रहा हूं फ्रॉम ए टू बी. क्लियर? नाउ अब यहां से आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स मूव आउट फ्रॉम हियर. लुक एट दिस प्रॉब्लम. Area bounded by y equal to x sin x. It's a very beautiful graph. It's a, yes, exactly Preetham, like a scanner. अजय, yes, exactly. उसकी बात करेंगे हम. अजय जो बोल रहा है ना एलिमेंट y axis dy, उसके ऊपर आएंगे आफ्टर सम टाइम. I'll come to that. अजय, when to take that and when to take this, I'll come to that. हाँ, this is a very beautiful graph. I really like this graph. y equal to x sin x. कभी बहुत डिटेल में कराऊंगा, may not today. x axis between this and this. पढ़ना बहुत ध्यान से पढ़ना आना चाहिए अपने को. So there is a graph x axis x equal to 0 and x is equal to 2 pi. इनके बीच में मुझे इसके ग्राफ को विजुलाइज करना है बहुत ही सिंपली. कैन यू विजुलाइज द ग्राफ ऑफ y is equal to x sin x? Why do I want to visualize it? Just to see where is it negative, where is it positive. अगर visualize नहीं भी कर पाओगे ना तब भी solve हो जाएगा. I'll tell you how. But still let's learn to visualize. जरा देखो जीरो पे क्या है. Can you visualize the value at 0? What is the value at 0? When x is 0, the graph is 0. Agree? When x is 0, x sin x is 0. Then 2 pi. 2 pi में बच्चों क्या होगा? x is 2 pi, but sin 2 pi बच्चों कितना हो जाता है? What is sin 2 pi? Sin 2 pi is 0. So 2 pi पे भी 0 है. बीच में sin x, आप सबको पता है. How does sin x behave? This is the graph of sin x. देखो x तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है. x इज ऑलवेज पॉजिटिव. फ्रॉम 0 से लेके 2 पाई x तो हमेशा ही पॉजिटिव है, नो प्रॉब्लम. बिटवीन 0 टू पाई sin x is also positive. Agree? Sin x is positive between 0 to pi. So x sin x is positive between 0 to pi. But pi पे क्या होगा बच्चों? What will happen at pi? At pi sin x becomes 0. So at pi sin x becomes 0, x sin x will also become 0. तो बच्चों ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि 0 से पाई के बीच में द ग्राफ विल बी पॉजिटिव, बट बिटवीन पाई से 2 पाई x तो पॉजिटिव है बट sin x विल बी नेगेटिव, सो नेट ग्राफ विल बी नेगेटिव. सो एक्चुअली द ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस. आई एम जस्ट प्लॉटिंग इट. आई डोंट केयर अबाउट कितना ऊपर कितना नीचे, जस्ट समथिंग लाइक दिस. कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा. Something like this, some rough shape, just to give us an idea where it is positive, where it is negative. बच्चों किसका ग्राफ बनाया मैंने ये? This is the graph of y is equal to x sin x. Agree? क्या आपको रफली ग्राफ प्लॉट करना आ गया? Does it make sense बच्चों? Yes or no? Can you roughly plot the graph x sin x? Simply मैंने क्या किया? I have just seen where is the graph 0. Where is the graph positive, where is the graph negative? Absolutely nothing else. Now you have to find the area bounded between x-axis, x equal to 0 and x is equal to 2 pi. इसके बीच में bounded क्या होगा बच्चों? What is the bounded area? The bounded area is this. देखिए ध्यान से. This is the area. फिर से कर सकते हो आप. क्या करोगे? Integrate between 0 to pi. सो क्या करोगे? इंटीग्रेट बिटवीन द एरिया विल बी गिवन बाय 0 टू पाई तो पॉजिटिव है, सो 0 टू पाई x sin x प्लस नाउ पाई से 2 पाई द ग्राफ इज नेगेटिव, सो बिटवीन पाई से 2 पाई
ग्राफ तो नेगेटिव है, राइट? सो टू फाइंड द एरिया मुझे इंटीग्रेशन का बच्चों क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव. सो आई हैव टू टेक नेगेटिव ऑफ दिस इंटीग्रेशन. विच इंटीग्रेशन? एग्री कर लोगे सब लोग? जस्ट सॉल्व इट. एक्स साइन एक्स सिंपल बाय पार्ट्स. नहीं तो द DI मेथड विच आई टोल्ड यू यस्टरडे. रिमेंबर द DI मेथड विच आई टोल्ड यू यस्टरडे. एक्स साइन एक्स डायरेक्टली कर सकते हो. कैन यू राइट डाउन इट्स इंटीग्रेशन यूजिंग द DI मेथड आई टोल्ड यू यस्टरडे. डायरेक्टली ये कराया था मैंने, इफ यू रिमेंबर, राइट? बाय पार्ट्स, द शॉर्टकट मेथड ऑफ बाय पार्ट्स, द शॉर्टकट विच आई टोल्ड इन माय सैटरडे वाली क्लास ऑफ शॉर्टकट्स. सिंपली यूज इट, राइट द आंसर, खत्म. ठीक, क्लियर? सो 0 to pi no problem, positive. Pi से 2 pi graph is negative, so put a minus sign outside and integrate. Very simple. Clear? आगे बढ़ जाओ. सो आंसर बता देता हूँ. तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा. द ग्राफ इज एक्चुअली समथिंग लाइक दिस. एक्स साइन एक्स 0 to pi, मॉड्यूलस ऑफ एक्स साइन एक्स 0 to pi, मतलब पाई से 2 pi, विच इज एज गुड एज सेइंग कि विद अ माइनस साइन. सो जब सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 4 pi. आंसर इज 4 pi. आंसर विल बी बच्चों 4 pi. Got it? Anybody any doubt till here? नहीं सोनक, नॉट डायरेक्टली. फिजिक्स में क्या होगा ना, आपने सोनक किया 2 pi r इंटू, जो आप पूछ रहे हो सोनक, 2 pi r इंटू डी आर. 2 pi r इंटू डी आर का इंटीग्रेशन विल बी द एरिया बिटवीन 0 to r. ठीक, आगे बढ़ जाओ. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव अहेड. नाउ एरिया बिटवीन टू कर्व्स fx एंड gx बच्चों. नाउ अब इसके अंदर क्या करते हैं बच्चों? वेरी सिंपल. बिटवीन टू कर्व्स आई एम टेकिंग अ केस. मान लो एक ग्राफ ये रहा. दिस इज वन ग्राफ. से दिस इज y इज इक्वल टू fx, राइट? एंड लेट देयर बी अनदर ग्राफ. से कोई दूसरा ग्राफ लेते हैं ये. से दिस इज y इज इक्वल टू g of x. Right, there are two. This is x is equal to a and this is x is equal to b. Now focus on the language बच्चों. language क्या होगी? area bounded between two graphs fx and gx and ordinates x equal to a and x is equal to b. area bounded between two graphs एंड x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी. कौन सा एरिया बच्चों? ये वाला एरिया. एरिया ऑलवेज बच्चों क्या होता है? अपर ग्राफ माइनस लोअर ग्राफ. ये देखना, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं. दिस इज हमेशा इमेजिनेशन कैसा आ रहा है? इमेजिनेशन आ रहा है, ये एलिमेंट ले लेते हैं, दिस एलिमेंट. ठीक है बच्चों, इस एलिमेंट की विड्थ कितनी है? द विड्थ इज dx. इसकी विड्थ कितनी है? dx. द विड्थ इज dx. and what is the length of this? length is upper graph minus lower graph, y2 minus y1. that is integral upper graph y2, this is y equal to fx ना, इसका वाला y minus इसका वाला y, that is gx, upper graph minus lower graph into dx, moving from x equal to a and x is equal to b is your answer. अपर माइनस लोअर, अपर ग्राफ माइनस लोअर ग्राफ. बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता. इट डज नॉट मैटर इफ द ग्राफ्स लाइज अबव एक्स एक्सिस, बिलो एक्स एक्सिस, इट डज नॉट मैटर. ठीक है, बोथ ऑफ दीज ग्राफ्स कैन लाई अबव और बिलो एक्स एक्सिस, इट डज नॉट मैटर. व्हाट मैटर्स इज अपर माइनस लोअर, बस. ठीक, समझ में आया? अपर माइनस लोअर, absolutely nothing else. Let us see through some examples. But does this visualization help you? ये वाला visualization क्या किया मैंने? I took this element and moved it from x is equal to a to x is equal to b. एलिमेंट की लेंथ कितनी है? अपर ग्राफ का y माइनस लोअर ग्राफ का y, अपर ग्राफ का y माइनस लोअर ग्राफ का y into dx मूविंग फ्रॉम a to b. That's it, very simple. आगे बढ़ जाएं. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल टू विजुलाइज दिस. ये मैंने केसेस बता रखे हैं यहाँ पे. अपर लोअर कोई फर्क नहीं पड़ता. इट डज नॉट मैटर इफ द ग्राफ इज बिलो एक्स एक्सिस और अबव एक्स एक्सिस, डज नॉट मैटर.
चाहे ये केस हो चाहे ये केस हो, आंसर इज ऑलवेज अपर माइनस लोअर dx a to b, दैट्स इट, क्लियर? ठीक है, अब आ जाओ इसके ऊपर. हाँ, assuming that both graphs do not intersect, one graph has to be upper, one graph has to be lower. This is true only till the time the graphs do not intersect each other. है ना, ये क्लियर है? जब इंटरसेक्ट करेगा तो सेपरेट केस बनेगा, विच विल डिस्कस लेटर. नाउ अब आ जाओ इसके ऊपर. फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व दिस एंड दिस. जरा देखें इसको, इसका मतलब क्या हुआ? विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट. एनक्लोज्ड बिटवीन दिस एंड दिस. जरा अपना फेवरेट ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अपना फेवरेट ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बना दो. दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इज अ स्ट्रेट लाइन. y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इज अ स्ट्रेट लाइन. बच्चों कैसी बनेगी स्ट्रेट लाइन? ये अपना y एक्सिस है, राइट? y इक्वल टू एक्स प्लस टू, स्लोप 1 एंड इट पासेस थ्रू 2. ये 2 है आपका, दिस इज 2. सो यहां से स्लोप 1 की एक लाइन जाएगी. सो दिस लाइन इज y इज इक्वल टू x प्लस 2. इन दिस केस व्हेन समबडी सेज एरिया एनक्लोज बिटवीन टू कर्व्स, मतलब क्या है इसका? इन दोनों पक्के से ये दोनों दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे. The red and the black graphs intersect at 2 points and you got a closed area between them. You got a closed area between them. बस कुछ नहीं करना. Upper graph minus lower graph between which points बच्चों? Between these points. Say this point is x1 and say this point is x2. So can you write down the integration? इंटीग्रेशन बच्चों क्या होगा? एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इज अपर वाला y, अपर वाला y, अपर वाला y बच्चों कितना है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, अपर y इज x प्लस टू माइनस लोअर y, रेड वाला ग्राफ. रेड वाला ग्राफ का y कितना है बच्चों? रेड वाला ग्राफ का y कितना है? एक्स स्क्वायर. आई एम राइटिंग एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ x because I am integrating with respect to x. So this is like your y2, upper y minus lower y, like your y1 dx, right? So y2 minus y1 dx, but between x1 से x2. अब आपको x1 x2 फाइंड करना पड़ेगा, कर लोगे? x1 से लेके x2. Can you tell me x1 x2? The points of intersection of the two graphs. Can you find out x1 x2? So Suraj says 2 4 and minus 1 1. ऐसा कुछ आएगा? इनको सॉल्व कर लो. Find x1 and x2, solve these two. इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे. कैसे सॉल्व करेंगे? y मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, दिस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू. दोनों को सेम कर दिया फॉर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. आप इनको सॉल्व कर लो, आपके पास x1 x2 आ जाएगा. आ जाएगा? क्लियर? -1 and 2, -1 and 2, एक आएगा -1 और एक आ जाएगा 2. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक कर लेना बच्चों. ठीक, सो यहां पे आ जाएगा -1, यहां पे आ जाएगा 2. इंटीग्रेट टू गेट द आंसर. क्लियर? ये समझ में आया ना आपको मैंने क्या किया? अपर y माइनस लोअर वाला y, बट राइटिंग बोथ द y इन टर्म्स ऑफ x बिकॉज इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू x. क्लियर? ठीक है. अब कहाँ जाते हैं? अब इसका देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है. इसका आंसर चेक कर लो, आंसर आ जाएगा. तो दिस इज द शेडेड एरिया विच यू वांट. x equal to 2 and x equal to -1 is the points of intersection. So first find the points of intersection of the curves. So this is x is equal to -1, this is x is equal to 2. Now integrate किया तो integration कैसे आएगा? -1 से 2, fx minus gx, upper minus lower. Upper one is x plus 2, y is equal to x plus 2, y is equal to x square dx. कर कुरा के आंसर आ रहा है 4 plus 1/2, that is 9/2. Agree? 9/2. Yes, many of you got the 9/2 answer. अखिल जैसे बोल रहा है, right?
and many others also said. Chanchal, clear? आगे बढ़ जाएं? Yes, Suraj, you are right. आगे बढ़े? Now, let's look at this question. Now, area of the region bounded by these curves. Can you do this now? करो जरा खुद से try. Visualize these two. Visualize these two. Y plus 2x square is equal to 0. Y plus 2x square equal to 0. And y plus 3x square is equal to 1. बच्चों देखो, both are parabolas. Both are parabolas. हाँ देखो, ये कैसा ग्राफ है? y इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर, और ये कैसा ग्राफ है? दोनों ये अपना वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ. वी डिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ सम टाइम बैक इन द चैप्टर ऑफ फंक्शंस. अगर किसी को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में डाउट है, इफ एनीबडी हैज एनी डाउट इन ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन, just search for Vedantu graph transformation on YouTube. There is 1 or 2 classes that I took on graph transformation. तो बच्चों ये कैसा ग्राफ होगा? This is the inverted graph. ये कैसा ग्राफ है? Inverted. Y equal to x square, y equal to 2 square, further steeper but minus 2x square उल्टा. So ये ग्राफ कैसा हो जाएगा? So this is the first graph. This is y is equal to minus 2x square. ठीक है? Now let's look at this graph. y equal to minus 3x square. बच्चों ये कैसा होगा? y equal to minus 3x square, right? But जैसे ही मैं +1 कर दूंगा, this entire graph will shift up. This graph will shift up to 1, right? तो कैसा ग्राफ बनेगा ये? This is shifted 1 up, right? And it is steeper than minus 2x square. तो ऐसा कुछ बनेगा ये. राइट तो ये हो गया ब्लैक वाला ग्राफ, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1, और नीचे रेड वाला हो गया माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1. जरा ध्यान से देखो, दे विल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स विच यू कैन फाइंड आउट. यू कैन फाइंड आउट दीज पॉइंट्स. से दिस वन इज x1. मुझे y से कोई मतलब नहीं है, आई डोंट केयर अबाउट द y. दिस इज द x1. ये पॉइंट x1 है आपका यहाँ पे. x1 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका x2. सिमेट्रिकली दोनों सेम ही होंगे. अगर ये कुछ आएगा तो ये उसका नेगेटिव वैल्यू आएगा, बिकॉज बोथ द ग्राफ्स आर सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस. व्हाट डू यू वांट? एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स. सो व्हाट डू यू वांट बच्चों? यू एक्चुअली वांट दिस. दिस इज व्हाट यू वांट. दिस इज व्हाट यू वांट, which is very simple to do. Upper minus lower, upper minus lower, black minus red between the points x1 and x2. कर लोगे सब लोग सॉल्व? तो बच्चों क्या हो जाएगा? सो द आंसर विल बी इंटीग्रल फ्रॉम x1 से लेके x2 द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ्स. ठीक है, अपर ग्राफ का y, ठीक है, अपर ग्राफ का y बच्चों क्या है? ये वाला अपर ग्राफ का y, एंड लोअर ग्राफ का y बच्चों क्या है? ये वाला. सो y2 अपर ग्राफ का y माइनस लोअर ग्राफ का y, दैट इज माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस लोअर ग्राफ का y विच इज माइनस 2x स्क्वायर dx. दैट्स इट. दैट शुड बी योर आंसर. कूल. तो लॉट ऑफ यू आर सेइंग सी इज द आंसर. चेक कर लें. सी, कुछ बच्चे डी भी बोल रहे हैं. अजय सेज डी, प्रीतम सेज सी. लेट्स चेक. सो आंसर विल बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. बच्चों आ रहा है, पहले चेक कर लेना. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपॉन सॉल्विंग दीज टू विल बी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. सो x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू प्लस 1, राइट. अपर माइनस लोअर विल गिव यू इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन में लिख के दिखा देता हूं आपको. इंटीग्रेशन इज, आप दो तरीके से कर सकते हो इंटीग्रेशन. एक सेकेंड. इंटीग्रेशन दिख रहा है?
-1 to 1 समथिंग, बट इसको करने की जगह यू कुड हैव ऑल्सो डन दिस एज 2 times. Why? Because both graphs are even graphs, right? ये जो आपका इंटीग्रेशन आ रहा है ना, ये वाला इंटीग्रेशन -1 to 1, this is even because दोनों ग्राफ आर सिमेट्रिकल अबाउट y axis. एग्री? सो सिंस इट इज इवन, तो आप -1 से 1 करने की जगह 2 times 0 to 1 से भी कर सकते थे. वन इन द सेम थिंग. एग्री? क्लियर? सॉल्व करोगे आ जाएगा 4/3. व्हेन यू सॉल्व यू विल गेट 4/3. व्हाट इज डी? डी इज द आंसर. क्लियर? मेक सेंस? डज इट मेक सेंस बच्चों? एनी डाउट? Could you get it? Yes or no? Could you understand? Yes or no? Ravi Upadhyay, rectangular hyperbola is y equal to 1 upon x. Vectors Sunny from next week. Okay? चलो good. All of you got it. तो आगे बढ़ जाते हैं. Region bounded by these. Now this is actually very interesting. I am purposely taking this question because here you will learn different ways to plot a graph. So y equal to x square, y equal to 2 upon x square, area bounded between the two. Mohammad Arbaz, ये chapter 2 more classes. By this weekend, this class, by Friday we will be done with area under the graph because nothing much there. My third class on Friday will be on high level problem solving, right? JEE Mains and JEE Advanced level problem solving will be on Friday. Next class on Wednesday will be again on concepts, more deeper concepts. ठीक है? Oh sorry, next week differential equations, उसके बाद में vectors and 3D. Sorry Sanjaya, you are right. हाँ, आ जाओ इसके ऊपर. ये ग्राफ सबको आता है. I want all your attention on understanding this graph. Y is equal to 2 upon 1 plus x square. अब सब कुछ छोड़ दो. Forget about area under the graph. The question is to visualize graph of that is my problem statement. अभी इसको जरा visualize करते हैं. इवन है कि ऑड है? इवन है ये. दिस इज इवन. इवन मतलब सिमेट्रिकल अबाउट. व्हेन x इज 0, पुट x इक्वल टू 0. बच्चों क्या आ रहा है? व्हेन x इज 0, मतलब y कितना आ रहा है? y इज 2. मतलब ये ग्राफ यहां से इट इज passing through 0, 2. Now the graph will either go up or go down. यही possibilities है, either can go up or go down. ठीक है? It's very simple to visualize. Now ध्यान से सुनना इसको. As x increases, बच्चों denominator increase होगा कि decrease होगा? As x increases, denominator increases. अगर denominator increase होगा then the net value of y will decrease. As denominator increases, the function will decrease. Obvious सी बात है. इसका मतलब पक्के से क्या होगा? The graph will go down. ये बात तो पक्की है. And अगर यहाँ पे डाउन जाएगा तो यहाँ भी डाउन जाएगा because the graph is symmetrical about y axis. Obvious. ठीक है? You can actually check its behavior at infinity. So check limit x tends to infinity. प्लस या माइनस एक ही बात है. क्या होगा? कितना रहा है बच्चों? As x tends to infinity, the denominator will become infinity. 2 upon infinity, 0. Actually, the graph will keep decreasing. ठीक है? Till it actually becomes almost 0. It will not touch x-axis. It will tend to 0 as x tends to infinity. Make sense? This is the graph. So this is the graph like Ravan ki मूछे. Do you realize this graph looks like what? ठीक है? समझ में आया? Yes or no? So what did we use?
We use the symmetry, we use the behavior at 0, we simply put some logic to see this graph is going up or down because it was obvious. Nahi to check the behavior at infinity. And also you realize graph is always positive. The graph is always positive, graph will be always above x-axis. ठीक है? Clear? So in English, the mucha, I was saying that this looks like the mustache of Ravan, right? Anyways, what is the other graph? The other graph is y equal to x square, which all of us know. This is the graph of y equal to x square, right? So what do we want? Area bounded between the curves. This is what you want. This is what you want. Solve it. Very simple. Upper graph minus lower graph. Just find out this point. This point is x1. This point is x2. Integration between upper graph minus lower graph is your answer. So what is the answer? Integration between x1 से x2 आप खुद find कर सकते हो. You can find out upper graph का y is 2 upon 1 plus x square minus x square dx. Agree? This is your answer. Solve it to get the answer. Anybody any doubt? ठीक है? Anybody, can you tell me the answer? Anybody? Has anybody calculated the answer? Jishnu, this chapter is very important for JEE. This chapter. Answer. Anybody? ये रहा, फिर से रिपीट कर देता हूं. This pink graph 2 upon 1 plus x square is a very important graph. How did we plot it? First we check its symmetry about y-axis. So since x की power was even, the graph was even, hence the graph is symmetrical about y-axis. The graph was symmetrical about y-axis. Observation 1. Second, we check that it cut the x-axis at 0, 2. When x is 0, the y is 2. Right? We also realized that as x increases, the value of y decreases. आप इसको ऐसे भी कर सकते थे. You could have done it like this also. This is the method of finding range. Remember the chapter of functions. अगर कोई आपसे पूछता find its range, इसकी range कैसे find करोगे? The question of range. Y is equal to 2 upon 1 plus x square. Remember how do we find range? We write it as x is equal to something. We try to write it as x square is equal to, after cross multiplying, x square आ जाता है 2 minus y upon y, right? But x square is always positive, so this is always positive. Using the wavy curve, I can also write this as y minus 2 upon y less than equal to 0. Multiplying both sides by minus sign, which using the wavy curve method will give this. This is your range. This, what do we get? We get range. This is exactly the question which I took under the topic of range in my classes in functions and graphs. Remember? So you could have approached the problem like this also. You can see the range of this pink function is from 0 से लेके 2, 0 पे open, 2 पे closed. I'm just revising the chapter of functions for you. How to find range. ठीक है? And at the last हमने अब देखा कि भैया ग्राफ तो डिक्रीज हो रहा है. So where will the graph tend to as x tends to infinity? So as x tends to infinity, the graph will tend to 0. The graph will tend to 0, right? Or x-axis is the asymptote to the graph at infinity. I'm trying to approach, देखो problem solve करना तो बहुत आसान है. The solving the problem was simple. I'm taking this problem as an opportunity to teach you multiple concepts. I hope you appreciate that. केवल problem solve करना है तो कुछ नहीं है, integration करना है, big deal. You just have to do this integration, which is tan inverse x and 2 by 3 x cube. Solve कर लेना, आंसर ही आ जाएगा. But through it you have to learn multiple concepts. ठीक? Agree? Yes or no? Akhil बोल लो asymptote. If you have not
heard about asymptote, then imagine I didn't speak anything. Don't worry. Don't worry. Asymptote as such is not part of your syllabus. Simple understanding है, बाद में फिर कराऊंगा. Don't worry. ठीक है? हाँ, Sonak is asking, we can find some hints. हाँ, ये सब hints ही तो हैं. All these are hints to plot a graph. अगर ग्राफ नहीं भी प्लॉट होता ना बच्चों, तो क्या कर देना, assume anyone as upper, another one as lower, integrate, आंसर शुड बी पॉजिटिव. गलती से आंसर नेगेटिव आ जाए तो पॉजिटिव कर देना. समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल पाई बाई 2 का वैल्यू इज लाइक 1.5. 1.5 माइनस 1/3 इज पॉजिटिव. अगर गलती से उल्टा इंटीग्रेट कर देते तो आंसर आ जाता 1/3 माइनस पाई बाई 2. बट 1/3 माइनस पाई बाई 2 कैन नॉट बी द आंसर एज इट इज नेगेटिव एंड एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव. समझ में आया? सो वो तो है ही, दैट इज ऑब्वियस, बट आई एम टेकिंग अपॉर्चुनिटी टू टीच यू द ग्राफ थ्रू दिस. एनीवेज, आगे बढ़ जाओ. अब आ जाते हैं द लास्ट कंसेप्ट ऑफ द डे, दैट इज एट टाइम्स रेदर देन मूविंग द एलिमेंट फ्रॉम ए टू बी वर्टिकली, एट टाइम्स यू हैव टू मूव द एलिमेंट हॉरिजॉन्टली, अप एंड डाउन. कैसे? देखो, ये देखो, अगर मुझे इंटीग्रेट, इमेजिन करो द क्वेश्चन वॉज दिस, इमेजिन द क्वेश्चन वॉज find area bounded between the graph and the y-axis. Area bounded between the graph and the y-axis. ठीक है बच्चों? तो आप क्या कर सकते थे? Area bounded between the graph and the y-axis between 2 points, between 2 horizontal lines, y is equal to c and y is equal to d. समझ में आया क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है एरिया बाउंडेड बिटवीन दीज. सो एरिया बाउंडेड बिटवीन वाई एक्सिस कर्व, y इक्वल टू सी, y इक्वल टू डी. अब मैं क्या करूंगा बच्चों? आई विल टेक दिस एलिमेंट, राइट. अब इस एलिमेंट की विड्थ क्या है बच्चों? व्हाट इज द विड्थ ऑफ दिस एलिमेंट? द एलिमेंट की विड्थ इज dy, द विड्थ ऑफ दिस एलिमेंट इज dy, राइट. द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट इज, बच्चों क्या है? इस ग्राफ का x, दिस इज x, एग्री? ये तो y एक्सिस है, तो ये पॉइंट बच्चों कितना हो गया ग्राफ के ऊपर? x. तो ये कितना हो गया? इंटीग्रल एरिया कितना हो जाएगा? इंटीग्रल x विथ dy between y equal to c and y equal to d. So this area element is moving between y is equal to c से y equal to d. Makes sense? It is moving like this. Does it make sense for you? Does it make sense? Yes or no? Shantanu, okay. Shantanu बेटा, you can download Vedantu app as well on Play Store. वहाँ पे सारे PDF मिल जाएंगे आपको. You'll get all the PDF there very easily. ठीक. अब इसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूं. ठीक है? लुक एट दिस इज अगेन द सेम थिंग. यहां पे क्या करना है आपको? लुक एट दिस. इसको भूल जाओ, इसको बाद में करेंगे, डू इट लेटर. 2 ग्राफ्स. दिस ग्राफ इज x इक्वल टू g ऑफ y, दिस इज x इज इक्वल टू g ऑफ y, x इज इक्वल टू f ऑफ y. y इक्वल टू fx नहीं बोल रहा. व्हाट आई एम सेइंग, x इक्वल टू gy, x is equal to f of y. I want to find the area bounded by blue graph, red graph and y equal to n, y equal to b. ठीक है? What is simplest to do here बच्चों? The simplest to do here is to take this element, right? बच्चों इस एलिमेंट की विड्थ कितनी है? The element की विड्थ is dy, this element is dx, this element is dy. ठीक है? And ये बच्चों क्या है? दिस इज x2 एंड दिस इज x1. तो ये लेंथ कितनी है बच्चों? द लेंथ इज, ये लेंथ कितनी हो जाएगी? x2 माइनस x1. सो व्हाट इज द एरिया? एरिया विल बी बच्चों इंटीग्रल x2 माइनस x1 हायर x माइनस लोअर x. पहले क्या था बच्चों? हायर y अपॉन हायर y माइनस लोअर y dx मूविंग बिटवीन x इज इक्वल टू c एंड x इज इक्वल टू d. नाउ higher x minus lower x
इंटू डी वाई मूविंग बिटवीन y इज इक्वल टू c से y इक्वल टू d, राइट। अब x और y को दोनों को किस में लिखोगे आप? इन द टर्म्स ऑफ y। नाउ दिस एंड दिस राइट इट इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। तो x2 बच्चों कितना है? x2 इज g ऑफ y माइनस f ऑफ y dy मूविंग बिटवीन y इज इक्वल टू c से y इज इक्वल टू d। दिस इज योर आंसर। मेक सेंस? ठीक है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट मोर डीपली। कब इसको यूज करना है, कब इसको यूज करना है, देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स लुक एट दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को देख लो। एरिया बिटवीन द कर्व एंड द वाई एक्सिस। कर्व क्या दिया हुआ है आपको? y इक्वल टू रूट एक्स माइनस टू, y इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस टू इज द कर्व, ये ब्लू कर्व, राइट। एरिया बाउंडेड बिटवीन दिस कर्व, y इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3 एंड y एक्सिस। बच्चों क्या करेंगे? फिर से क्या करेंगे? एलिमेंट लेंगे, कौन सा? आई विल टेक दिस एलिमेंट बिकॉज इट्स सो सिंपल टू गो लाइक दिस। इस एलिमेंट की विड्थ बच्चों कितनी है? dy इज द विड्थ ऑफ दिस एलिमेंट एंड द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट इज x। x है ना, ये कितना है? x इक्वल टू 0 और यहां पे कितना है? जो भी x है वो x है, सम x, राइट। सो x माइनस 0 इंटू डी वाई, तो बच्चों क्या हो जाएगा? वॉट इट विल बी? इंटीग्रल x dy where y moves from y equal to 1 से y is equal to 3, right? Can you write x in terms of y? Can you write x in terms of y? This implies got it? Can you do it? Make sense? Yes or no? आ जाएगा? ये x आ गया, x को पुट कर दो, x has to be in terms of y because you are integrating with respect to y. That's it. Cool? एक और एग्जांपल करें, आंसर चेक कर लो इसका। I have done the calculations for you. Answer is 12 plus 2/3, जो भी आएगा ये 12 3 जा 36 plus 2 38/3, हाँ 38/3। Marshmallow is saying 38/3, correct. आदित्य करूंगा, I'll do that, don't worry. Last problem, are you ready for the last problem? एक करें क्या last problem? JEE problem. Should we do a last problem? Yes or no? Yes? Okay. ये कर लो। JEE Mains 2013, अब इसको करते हैं, दिस इज लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे, ठीक है। टू रिवाइज द कंसेप्ट, IIT एस्पिरेंट, इज योर लेक्चर्स इनफ फॉर JEE Mains? बेटा इतना कर लो, JEE एडवांस्ड भी हो जाएगा, डोंट टेक टेंशन। IIT एस्पिरेंट, these concepts are more than sufficient for JEE Mains and Advanced both. Yes, Kolayu, Yuvashri, yes you can, but can you explain about GIF? Beta Hashim, go and revise my classes of functions. You can search for Pulkit Vedantu functions. You will get my classes of functions. There I have taken entire class on GIF. हाँ, इसके पर आ जाओ। क्या बोल रहा है ये प्रॉब्लम? Let's try to understand the problem. It says area bounded by the curves y is equal to root x, straight line, x-axis lying in between the first quadrant. Lying in between the first quadrant. First let us plot the graph. Do you realize what is the graph of y equal to root x? बच्चों नोट कर लो, this is the graph of y equal to root x. All of you should know that the graph of y equal to root x बच्चों is this. याद रखना बच्चों, y equal to root x, always remember root x is always positive. So इसका डोमेन और रेंज बच्चों क्या होगा? कोई आपसे पूछे इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन होता है बच्चों x greater than equal to 0 because x is inside the root and its range, बच्चों इसका रेंज कितना होगा?
also y greater than equal to 0. Why? Because under root is always positive. So y is always positive. So this graph will always be in the first quadrant. X positive, y positive. This is the graph. This is the graph of y equal to root x. Very 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 important. ठीक है. दूसरा ग्राफ क्या है? 2y minus x is equal to 3. ये तो स्ट्रेट लाइन है. I can visualize this as y is equal to कितना हो जाएगा? उधर ले जाऊं, x minus 3. ठीक है. So this is half x minus 3 by 2. So increasing graph and starting from minus 3 by 2. mx plus c से कंपेयर कर रहा हूं. So how does this graph look like? The graph will look like this. कुछ ऐसा जाएगा. ओए ये क्या हो गया? Oops. Let me just show. I think मैंने प्लॉट कर रखा है आपके लिए. हाँ ये रहा, देख लो. तो दूसरा ग्राफ क्या? ये तो हो गया ग्रीन वाला ग्राफ इज y इक्वल टू रूट एक्स, राइट. दिस इज y इक्वल टू रूट एक्स एंड दिस रेड लाइन इज 2y माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 पासेस थ्रू 0,3/2, राइट. एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा 3,0 पे. पुट कर दो x को 0, सॉरी y को 0, x3 आ जाएगा. एंड दे ग्रीन एंड द रेड ग्राफ विल कट ईच अदर एट द पॉइंट B. नाउ बच्चों, अब आपको दिमाग में डाउट आएगा कि शुड आई डू इट लाइक दिस और शुड आई डू इट लाइक दिस. नाउ सुनना ध्यान से. ईजियर इज टू डू लाइक दिस. वाई? अगर आप इसको ये वाला एलिमेंट लेके करते सॉल्व, हैड यू टेकन दिस एलिमेंट एंड सॉल्व इट, तो आपको बच्चों दो पार्ट्स में ब्रेक करके करना पड़ता है. यू वुड हैव हैड टू ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स टू डू इट. कैसे? फ्रॉम 0 to a the upper graph will be green and the lower graph will be x axis, right. upper minus lower. उसके बाद में after 3 the upper one would be green and lower one would be red. जबरदस्ती इंटीग्रेशन दो पार्ट्स में ब्रेक करके करना पड़ता. You would have had to do the integration by breaking into 2 parts. Are you getting me? Yes or no? Jishnu? Are you getting me? But smartness lies in, if you think, arey yaar, if I take this element, then all I need to do is the graph in front and the graph towards the back. So higher x minus lower x. The red graph, so what is the area which we need? X-axis, red, green. Area bounded क्या है? Shaded portion. If you realize carefully, upper larger x minus smaller x into dy, x2 minus x1 dy will continuously cover it without any breakage. It will continuously cover it. Am I making sense बच्चों? Yes. So मैं क्या करूँगा? मैं करूँगा x2 minus x1 into dy where y varies from y is equal to 0 to y is equal to b. बस ये y equal to b कैलकुलेट कर लेना. So solving these two कर दे सॉल्व, आपका रूट एक्स 3 आ जाएगा या y 3 आ जाएगा. एग्री? ये सब लोग सॉल्व कर लोगे? सो व्हेन आई सॉल्व दीज टू, तो मेरे पास बच्चों क्या आ गया? ये पॉइंट आ गया मेरे पास. आफ्टर सॉल्विंग द पॉइंट केम आउट टू बी, कितना आ गया? दिस पॉइंट केम आउट टू बी 3. y पॉइंट आ गया इसका 3, x जो भी आएगा है ना, x आ जाएगा 9, x 9 y 3. So I am integrating it between. Now this is what I am trying to do. x2 minus x1 dy between y is equal to 0, say y is equal to 3 के बीच में इंटीग्रेट कर रहा हूं. Now what is higher x? The higher x will be, यहाँ पे x कितना हो जाएगा? x here will be कितना हो गया? 2y plus 3. And what is the x here? The lower x. X here will be x is equal to y square. X is equal to y square. So higher x minus lower x into dy between 0 से 3, single integral will give you answer 9. शांतनु, I think so. अगर कोई भी डाउट है ना शांतनु, you can email me. My email ID is this.
इस पे मुझे ईमेल कर देना, मैं टीम से पूछवा लूंगा एक बार, ठीक है प्रीतम? आर यू गेटिंग मी? बच्चों, डिड यू अंडरस्टैंड द रीजन व्हाई आई डिडंट डू y2 minus y1 dx? Why did I do x2 minus x1 dy? Yes or no? I want you to understand this very very carefully. Calculation time save होगा अगर smartly analyze करोगे. Should I go like this or should I go like this? Super awesome, super awesome. Do press on the like button to give me feedback, okay? I want this feedback, very very important. Hashim, Hashim, I think I took some problems in my previous classes on GIF. बेटा GIF को break करना होता है बस integrals पे. I have taken some problems. You can go and revise from my I think 4th या 5th lecture of definite integration. There I have taken questions. ठीक? चलो. Is that clear, all of you? All right. I will close my class today. Next class में काफ़ी फंडू problems लेंगे, थोड़ी higher level की. And next to next class on Friday will be super high level, very interesting problems on area under the curve and few from integration as well. Okay, so gear up for next 2 coming classes on Wednesday and Friday. Chalo, see you in my next class, and till then bachcho, enjoy, and as I always say, be happy. Have this y equal to x square on your faces bachcho. Be happy, be blessed, and happy Ganesh Chaturthi, and enjoy the festivities. बट आपके लिए बेस्ट एंजॉयमेंट क्या है? पढ़ लो पढ़ाई करो, वही सबसे अच्छा एंजॉयमेंट है फॉर यू. ऑल राइट, चलो बाय बाय, सी यू.